Good morning, students. Today we are again with the same chapter, but the topic is different. Yesterday we learned about the different people, where they are living, and why they are living there. Like in the mountain hills, we are learning about the mountain hills and about the rivers banks also. Now, today again we are here in the page number 3. All of you open this and see with me. Throughout, the people travels from one part to the subcontinent to another. As everyone know, we are living in the Asia continent. It is near the subcontinent also. So throughout, the people travel from one part to and the subcontinent part to another. So जैसे everyone know कि people are moving one place to another place. Why they are moving here to there, that we are going to learn now. The hills and the high mountains included Himalayas, desert, rivers and seas made journey dangerous at time. In that time, journey is very dangerous. Still they are moving one place to another place, Himalayas. So there are so many reasons for that, why they are going here to there. But never impossible, nothing is impossible in the life if you want to do. In that time they are not having any aeroplane, anything. When they are going from one place to another, like if we want to go to Himalayas nowadays, we can go ahead from the Himalayas, and we can see this is the Himalaya, right? But on that time we are not having any type of aeroplanes, helicopter, etc. So in that time they are going by their own foot, right? So man and woman moved in search of livelihood. किस लिए जाते थे? They are not having livelihood here and there, so they are moving one place to another place. As you people know, they are living in the forest near the area of the river banks. So if the food is finished in the one place, like forest are they just attack the group, attack one group in the forest. So in one area they just finish uh, their things of the forest, and they move to the another forest, right? As also to escape from the natural disasters like floods and droughts. और कई बार क्या होता था, फ्लड्स आते थे, यानी कि बाढ़ आ जाती थी एक जगह, या फिर सूखा पड़ जाता था. फॉर दैट ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो द रीज़न टू मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस. समटाइम्स मैन merchants and armies conquering the other lands. Beside, the merchant travels with the caravans or the ships carrying valuable goods from place to another place. Now you people understand. Sometime मैन मर्चेंट्स आर्मीज, कई बार क्या होता था, मर्चेंट्स होते थे जो व्यापारीज होते थे, बड़े बड़े मर्चेंट्स होते थे जो एक जगह से दूसरी जगह अपना सामान लाने और ले जाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, राइट? आर्मी में होते थे. इसके बाद कॉन्करिंग द अदर्स लैंड, और जो राजा महाराजा होते थे वो एक दूसरे की ज़मीनों पर कब्जा, लैंड पर जो है वो क्या करते थे, कॉन्करिंग करने की, जीतने के लिए भी अपने लैंड को एक्सटेंड करने के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे. बिसाइड्स मर्चेंट ट्रेवल्स विद द कार्वन्स और द शिप्स. अब देखिए यहाँ पर क्या होता था, जब मर्चेंट जो होते थे वो शिप्स में एक साथ बहुत सारे ग्रुप में वैल्यूबल चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ग्रुप्स में जाते थे, प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह अपने सामान को खरीदने के लिए या बेचने के लिए भी जाते थे, राइट? Town to town stopping places, and religious teachers walk from villages to village, town to town. अब देखिए, रिलीजियस टीचर्स मीन्स सेंट, साधु जो होते थे या जो अपने धर्म का प्रचार करते थे, दे आर ऑल्सो गोइंग वन प्लेस टू अनदर प्लेस. क्यों जाते थे? क्या उन्हें मज़ा आता था एक जगह से दूसरी जगह घूमने पे? नहीं. दे आर गोइंग फॉर देयर स्प्रेड देयर रिलीजन, अपने धर्म का प्रचार करने के लिए, लोगों तक अपने विचार, अपने धर्म को पहुंचाने के लिए दे आर गोइंग टू वन प्लेस टू अनदर प्लेस, राइट? टाउन, एंड दे स्टॉप समवेयर ऑल्सो, स्टॉपिंग एंड ऑफरिंग इंस्ट्रक्शंस एंड एडवाइसेस ऑन द वे. और जितने भी गांव या जितने भी टाउन्स बीच में पड़ते थे, दे आर स्प्रेडिंग देयर रिलीजन, देयर व्यूज़ देयर, एंड टेल पीपल अबाउट देयर रिलीजन. Finally, some people perhaps travels driven by the spirit of the adventure. And finally, जैसे कि आज हम लोग घूमने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जैसे कि देखने के लिए, नई नई जगहों को देखने के लिए, एडवेंचरस के तौर पे दे आर ऑल्सो गोइंग like that, wanting to discover new and existing places. All these led to the sharing the ideas between the people, और अपने ideas लोगों से शेयर करने के लिए, राइट? वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ अ डेज, और आजकल लोग क्यों जाते हैं, वाई पीपल आर गोइंग हेयर टू देयर नाउ अ डेज. सो
Look at the map once more. Hills, mountains, and seas from the natural frontiers and the subcontinent. While it was difficult to cross these frontiers, those who wanted could and did scale to mountains and cross the seas. People from across the frontiers also came into the subcontinent and settled here. Look, now I am telling you why people are going nowadays. Here you can see द फ्रंटियर्स को क्रॉस करना बहुत इम्पॉसिबल सा होता था, बहुत मुश्किल भी होता था. तो when they are moving one place to another place, and after that they settled there only. Okay, so now all of you turn your page. Okay, so now these movements of people enrich our culture traditions. और क्या होता था, इसी से हमारा कल्चर भी डेवलप होता था. जैसे हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं एंड वी लर्न देयर कल्चर ऑल्सो, राइट. सो जैसे हम उनका कल्चर सीखते हैं एंड दे आर लर्निंग फ्रॉम अस. पीपल हैव शेयर्ड अ न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन्स, कंपोजिंग म्यूजिक एंड इवन कुकिंग फूड ओवर सेवरल हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स. और बहुत सालों तक क्या होता है, लोग कंटिन्यू सीखते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं. जैसे हम मान लीजिए हमारे यहाँ कोई बाहर से आता है, अमेरिका यूएसए से कहीं से वापस आता है, एंड दे आर सेइंग समथिंग अबाउट दैम एंड वी आर ऑल्सो डिस्कसिंग अबाउट दैम. तो हम भी उनसे अपने आइडियाज़, अपना कल्चर शेयर करते हैं. एंड वट एवर दे लाइक दे आर टेकिंग दैट, एंड वट एवर वी लाइक वी टेक फ्रॉम दैम. सो क्या होता है, अब इसके बाद देखिए न्यू वेज ऑफ कर्विंग स्टोन्स. कर्विंग स्टोन्स जैसे हमारे यहाँ क्या होता था, हम लोगों को मेटल्स में इंडिया का जो था फर्स्ट, क्या कहना चाहिए, फर्स्ट पोजीशन थी. मेटल्स की जो स्टैचूज थे वो इंडिया में पहले बनना शुरू हुए थे. बट वी डोंट नो अबाउट द कर्विंग द स्टोन्स. स्टोन्स में मूर्तियाँ कैसे बनाई जाती हैं, वी लर्न फ्रॉम द अनदर पीपल. ठीक है. Composing music also, composing like we learn from other state or other countries people. म्यूज़िक कंपोजिशन जैसे हमें उनका अच्छा लगा तो हमने उनसे कुछ ले लिया, हमें उनको हमारा अच्छा लगा, सो दे लर्न फ्रॉम अस. तो इस तरह से म्यूज़िक जो है, म्यूज़िक हो गया, कर्विंग स्टोन्स हो गया, सो मैनी थिंग वी आर गोइंग टू एक्सचेंज टू वन बाय ईच अदर. ठीक है. इवन कुकिंग फूड, आप देखिए हम साउथ इंडिया में हो या नॉर्थ इंडिया हो, वेस्ट इंडिया में हो, कहीं भी रहते हैं हम लोग चाइनीज़ फूड भी बनाते हैं हम लोग. नॉर्थ इंडिया का फूड आपको, साउथ इंडिया का फूड आपको हर स्टेट में मिल जाएगा, राइट. तो ऐसे हमने क्या किया, अपने कल्चर को बहुत ज़्यादा डेवलप किया. ओके स्टूडेंट, आई थिंक नाउ यू पीपल अंडरस्टैंड वेरी वेल. सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस